स्लाइड आ रही? जी सर, आवाज़ आ रही है, स्लाइड भी आ रही जी है। सर लागू। जी जी सर, आ रही है सर स्लाइड। अच्छा चलो ठीक है। तो पहले तो बात करते हैं रीनल रिप्लेसमेंट थेरापीज की। ठीक है, तो रीनल रेस रिप्लेसमेंट थेरापीज को आप यू कैन Recording is क्लासिफाई on. into extra corporeal or intracorporeal. ठीक है, जी सर। intracorporeal renal replacement therapies include peritoneal dialysis, acute and chronic, and then chronic is further divided into manual, which is CAPD, and automated with the help of the machine. So that includes CCPD, CCPD plus, CIPD, NIPD, or this TDP, tidal dialysis, or CFPD is continuous flow peritoneal dialysis. We have discussed those. ठीक है, and then intracorporeal dialysis includes the intermittent hemodialysis, the conventional hemodialysis, which all we do, and then there are the CRRTs, continuous renal replacement therapies. ठीक है, those include continuous arteriovenous hemofiltration, abbreviation is CAVH, फिर continuous arteriovenous hemodiafiltration, CAVHDF, और फिर कंटिन्यूस वीनो-वीनस हीमोफिल्ट्रेशन CVVH, और कंटिन्यूस वीनो-वीनस हीमोडायलिसिस CVVHD, सर और आपकी कंटिन्यूस। सर स्लाइड मूव नहीं जी हो रही सर। नहीं की थी मैंने, इसलिए तो पूछा था आपसे। सर स्लाइड तो आ रही है लेकिन मूव साइड नहीं हो शो रही। हो रही है, आगे नहीं हो रही। अब मूव हुई है सर। अब है? जी सर। जी सर। चलिए, तो एपी पेरिटोनियल डायलिसिस वाज द इंट्राकॉर्पोरियल, और एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल आर इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस, CRRTs एंड हाइब्रिड थेरापीज। तीन में डिवाइड हो जाती है। इंटरमीडिएट हीमोडायलिसिस जो कन्वेंशनल डायलिसिस आप करते हो, CRRTs में कंटिन्यूस आर्टेरियोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन CAVH, और कंटिन्यूस आर्टेरियोवेनस हीमोडायफिल्ट्रेशन CAVHDF, और continuous veno-venous hemofiltration CVVH, continuous veno-venous hemodialysis CVVHD, और continuous veno-venous hemodiafiltration CVVHDF, और slow continuous ultrafiltration SCUF। तो इनमें से फर्स्ट टू continuous arteriovenous hemofiltration और continuous arteriovenous hemodiafiltration, those are discontinued now, they are not being used जो है, although this continuous therapy is started with continuous arteriovenous hemofiltration. The first CRRT which was done, that was the continuous arteriovenous hemofiltration. ठीक है, but these two both arteriovenous CRTs जो हैं, they have been discontinued because of the complications associated with arterial cannulation. फिर हाइब्रिड थेरापीज क्या है? हाइब्रिड थेरापीज आर दोज थेरापीज व्हिच हैव फीचर्स ऑफ बोथ ऑफ दीज, फीचर ऑफ हीमोडायलिसिस एंड फीचर ऑफ CRRT, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। दोज आर दी हाइब्रिड थेरापीज, जिसके डिफरेंट नॉमिनक्लेचर यूज होता है। उसके लिए प्रोसीजर टेक्निक एक ही है मगर डिफरेंट नॉमिनक्लेचर आर यूज, जिसमें PIRRT which is prolonged intermittent renal replacement therapy, SLED, SLEDDD, this is the low efficiency dialysis. SLED was SLED, SLED was slow low efficiency dialysis, मगर उस पे फिर लोगों ने एतराज किया कि पेशेंट विल फील लाइक दैट दे आर बीइंग गिवन लो quality dialysis, so that's why the name was changed and that was turned to slow extended dialysis. That was जो low efficiency dialysis was changed to slow extended daily dialysis. It's also called as slow continuous dialysis or go slow dialysis or accelerated
वेनोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन और हीमोडायफिल्ट्रेशन। हीमोडायफिल्ट्रेशन और एवीएच जो है आर्टियो वेनोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन जो है दो आर वेरी स्लो थेरेपी, स्लो कंटिन्यूस थेरेपी। Hemodialysis is the fast therapy. So ये hybrid therapies are in between the two. तो continuous renal replacement therapy की definition is the any extracorporeal blood purification therapy intended to substitute for impaired renal function by achieving solute and fluid homeostasis over an extended period of time, applied for or aimed at being applied for 24 hours. जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका एम जो है दैट इज फॉर यू हैव टू कंटिन्यू दिस थेरेपी फॉर मिनिमम ऑफ 24 आवर्स, ठीक है, तो वो भी CRRT कहलाएगी। It may have been discontinued on its way somewhere after 6 hours, 8 hours. It was discontinued because of some complication. मगर स्टार्ट में आपका एम था 24 आवर्स का, तो it is still labeled as CRRT. हिस्ट्री CRRT की आप में से कौन बताएगा कि CRRT कितनी पुरानी इजाद है? सर 1970s में थी, 1977। 1977, ठीक है। CAPD was introduced in 76. First patient who had CAPD was year 1976. और ये CRRT, the first patient who had CRRT was in 1977. हुआ कैसे? जर्मनी में एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे, पीटर जी क्रैमर. He was trying to femoral vein cannulation for hemodialysis, ठीक है। हेमोडायलिसिस उस वक्त तक एस्टेब्लिश हो चुकी थी, CAPD अभी स्टार्ट हुई थी, क्योंकि फर्स्ट पेपर भी जो पब्लिश हुआ है ऑन CAPD, जो फर्स्ट 10 पेशेंट्स का एक्सपीरियंस वाज पब्लिश इन 78, फरवरी 1978 में पब्लिश हुआ था। मगर एक दो पेशेंट की डायलिसिस स्टार्ट हो गई थी CAPD, तो हीमोडायलिसिस जो है वो 1964 से रेगुलर हीमोडायलिसिस हो रही थी, ऑल्दो द केसेस वर पेशेंट जो वर गेटिंग अंडर डायलिसिस वर वेरी फ्यू। तो फेमरल वेन की कैनुलेशन कर रहा था, तो एक्सीडेंटली द कैथेटर वेंट इनटू द फेमरल आर्टरी। तो फेमरल आर्टरी में जब उसने देखा कि प्रेशर जो है ब्लड का दैट्स क्वाइट हाई, और he thought of using that instead of removing the catheter, तो उसको he thought of using that femoral artery catheter to do the dialysis, ठीक है, without using any pump। तो उसने आर्टरी फेमरल वेन में कैथेटर डाल दिया, और ये सोचते हुए कि पंप नहीं यूज करना मैंने, तो लो रेजिस्टेंट स्मॉल जो हीमोफिल्टर उसने यूज किया, ठीक है। तो फेमरल आर्टरी से बिकॉज ऑफ द प्रेशर इन द आर्टरी इटसेल्फ द ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू दिस हीमोफिल्टर बैक इनटू द फेमरल वेन, और ऑब्वियसली हेपरिन वाज इंड्यूस्ड हियर, ठीक है। और अल्ट्राफिल्ट्रेट जो कुछ भी था दैट वाज बीइंग कलेक्टेड हियर। तो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जो है अपना कंटिन्यूस आर्टियोवेनस हीमोफिल्ट्रेशन पे इन 1977 यूजिंग ए हीमोफिल्टर। उस वक्त जो हीमोफिल्टर आ रहे थे दे हैड सिंगल पोर्ट एज यू कैन सी इन हियर, क्योंकि डायलिसिस रन नहीं करनी थी, तो जस्ट हीमोफिल्ट्रेशन वो यूज करनी थी फॉर अल्ट्राफिल्ट्रेशन, तो देयर वाज ए सिंगल पोर्ट हियर। Very soon in 1978-79 में these acute CAVH kits were introduced। आजकल जैसे CAPD कैथेटर आ रहा है या फिजोफ्लेवियन कैथेटर या इंट्राजगुलर कैथेटर आ रहे हैं किट्स में, उसी तरह
दिस किट वाज इंट्रोड्यूस इन 1978, जिसमें एक हीमोफिल्टर था, ये वाला, आर्टीरियल ट्यूबिंग थी ये रेड वाली, और वीनस ट्यूबिंग थी ये ब्लू वाली, और एक यूरिन कलेक्शन बैग उसमें इंक्लूडेड था टू कलेक्ट द अल्ट्राफिल्ट्रेट। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट किट जो हमने 78, 79, 82 तक तो मैंने वहां स्टेट में यूज की थी, और एक आध मेरे पास पड़ी हुई थी। ये भी जब घर शिफ्ट किया गार्डन टाउन से यहाँ डॉक्टर सोसाइटी में, तो उस वक्त तो फालतू पुराना पुराना सामान मैंने फेंका, तो उस वक्त तक मेरे पास दो तो सैंपल पड़े हुए थे। तो ये फिल्टर था, ये आर्टीरियल ट्यूबिंग थी और ये वीनस ट्यूबिंग थी। तो इसमें आजकल की जो आर्टीरियल ट्यूबिंग है हीमोडायलिसिस के लिए और वीनस ट्यूबिंग है, कंपेयर टू दोस ट्यूबिंग द लेंथ वाज वेरी शॉर्ट। ठीक है, यू कैन सी कि ये लेंथ इसकी तरफ इतनी थी, नो ब्लड पंप सेगमेंट इन दिस वन। ठीक है, और ये हेपरिन लाइन थी यहाँ पे, और ये जो कन्वेंशनल यूरिन बैग था ग्रेजुएटेड टू मेजर दी हाउ मच फ्लूइड हैज कम आउट। तो ये दिस वाज सील्ड, और ये एक्चुअली सिंगल पोर्ट थी इसकी। तो ये जो यूरिनरी कैथेटर है, इसकी ट्यूबिंग वाज कनेक्टेड हेयर, arterial tubing here or venous tubing here, this end in the femoral artery, or this end was put into the femoral vein, or if there was a large peripheral vein was available, so this catheter was put in the peripheral vein or the femoral vein जो है। ठीक है, और blood will run through this, heparin was given here, or ultrafiltrate was collected into this bag. This was usually like the patient here on CABVH, ये एक साइड पे राइट साइड की फेमरल आर्टरी में कैथेटर डाला हुआ है, उससे ब्लड बाहर आ रहा है, ये हेपरिन की लाइन है, और ये रिटर्न हो रहा है फेमरल वेन में दूसरी तरफ, और ये जो है अल्ट्राफिल्ट्रेट जो हो रहा है दैट इज बीइंग कलेक्टेड इनटू दिस बैग जो है यूरिन बैग। और अल्ट्राफिल्ट्रेट कितना करना है, ठीक है, फ्लूइड किस रेट पे हमने रिमूव करना है, वो रेट कैसे रेगुलेट किया जाता था, बाय एडजस्टिंग दी हाइट ऑफ दिस यूरिन बैग। ठीक है, कि जितनी कम हाइट होगी उतनी अल्ट्राफिल्ट्रेशन स्लो हो जाती थी, जितना ये डिस्टेंस बढ़ा दिया जाता था अल्ट्राफिल्टर रेट जो है वो उतना बढ़ जाता था। अल्टरनेटली वी विल एडजस्ट द अल्ट्राफिल्ट्रेट रेट बाय ये एडजस्टिंग दिस क्लैंप ऑन दी अल्ट्राफिल्ट्रेशन पोर्ट। तो अगर आप इस पे क्लैंप को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे यहाँ पे, तो प्रेशर इन दी डायलिसेट कंपार्टमेंट ऑफ दिस माइक्रोफिल्टर जो है उसमें इंक्रीज हो जाएगा, जिस विल अपोज दी फिल्ट्रेशन प्रेशर, और फिल्ट्रेशन रेट जो है आपका स्लो हो जाएगा। तो ईदर बाय क्लैंपिंग दी अल्ट्राफिल्ट्रेशन ट्यूब और बाय एडजस्टिंग द हाइट ऑफ दिस बैग, तो अल्ट्राफिल्टर रेट वाज एडजस्टेड जो है। आर्टीरियल प्रेशर का रेट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि फेमरल आर्टरी से यूजली अबाउट 100 mm ऑफ मर्करी प्रेशर जो है वो मिल जाता था, विच वाज एनफ टू ड्राइव द ब्लड फ्रॉम द आर्टरी टू द वीनस पोर्ट। बच्चों में भी ये इस्तेमाल हुई। ठीक है, यू कैन सी ए स्मॉल चाइल्ड जो है ये फेमरल आर्टरी और फेमरल वेन में कैथेटर पड़ा हुआ है, और ये फिल्टर, you can see the size of the filter, it was about 4 to 6 inches in length होता है, और ये इसका अल्ट्राफिल्ट्रेशन पोर्ट है। और क्योंकि कंटिन्यूस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस उस वक्त CAPD आ चुकी थी, तो लोगों को भी कुछ शौक चढ़ा कि वी शुड हैव कंटिन्यूस एम्बुलेटरी आर्टीरियोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन। तो उसमें क्या किया, ये आप हीमोफिल्टर देख रहे हो, ठीक है, ये स्टेप कर दिया जाता था यहाँ थाई पे, और आर्टीरियल पोर्ट और वीनस पोर्ट जो है उसी तरह फेमरल आर्टरी और फेमरल वेन में
इंट्रोड्यूस करके इसको फिक्स कर दिया जाता था, स्टेप था, और ये उसकी अल्ट्राफिल्ट्रेट पोर्ट को यहाँ बैक कलेक्ट किया जाता था, जिससे अल्ट्राफिल्ट्रेट कलेक्ट होता था। तो ये कंटिन्यूस एम्बुलेटरी आर्टीरियोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन थी, वो उसका ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। Recording has stopped. लोगों को शौक हुआ था कि CAPD हो रही है तो हम ये भी करके देखते हैं। इसमें क्या होता था, ये कंटिन्यूस प्रोसेस तो कंटिन्यू रहता था यहाँ से, और फ्लूइड को उसी तरह रेगुलेट कर लेते थे बाय यूजिंग दिस क्लैंपन हेयर। और अगर एक्स्ट्रा अल्ट्राफिल्ट्रेशन होती थी तो दैट फ्लूइड वाज रिप्लेस्ड बाय माउथ। ठीक है, 2-3 लीटर की अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गई और उतना फ्लूइड रिमूव करने की जरूरत नहीं थी तो बाकी फ्लूइड जो है वो बाय माउथ जो है रिप्लेस कर दिया जाता था। ये कंटिन्यूस एम्बुलेटरी आर्टीरियोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन थी। नेक्स्ट चेंज आ गई हीमोडायाफिल्ट्रेशन की। तो उसमें फ्लूइड की जो अल्ट्राफिल्ट्रेट होता था फ्लूइड, उसकी अमाउंट बढ़ा दी गई और फिर ये सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड दे दिया गया पेशेंट को। ठीक है, कि अगर 6, 7, 8, 9, 10 लीटर रिमूव करके 7-8 लीटर जो है वापस रिप्लेस कर दिया गया। फ्लूइड जो है रिप्लेसमेंट वुड हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा। और ये फ्लूइड रिप्लेस करने का तरीका was very interested, जो है बैलेंसिंग सिस्टम कहते थे उसको, कि ये फ्लूइड इधर से बाहर आ रहा है और यहाँ पे वेट, उसका जितना वेट होना उतना प्रेशर इस पे पड़ना है, और इसने इसको प्रेस करना है, जितना वेट इसका होगा उतना ही ये प्रेस होकर फ्लूइड वापस यहाँ से जो रिटर्निंग लाइन है उसमें से पेशेंट को चला जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट फ्लूइड देने का पुराना ओल्ड तरीका था, एक किस्म का सॉर्ट ऑफ मैनुअली था, मगर एक बैलेंसिंग सिस्टम से कि जितना अल्ट्राफिल्ट्रेट आता था उसको बैलेंस करके उतना ही फ्लूइड जो है रिप्लेस कर दिया जाता था। नो गैजेट्स कहीं और नहीं, कुछ नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे। ये स्वाय हीमोफिल्टर के और ये लाइंस हैं और ये भी बैलेंसिंग सिस्टम है इसमें, और ये इस तरीके से ये वाज यूज्ड इन 1982, इतना ओल्ड नहीं है, 1982 में। और फिर आ गया आपका सिंपली मॉडिफिकेशन उसकी, कि ये तो हीमोफिल्टर था विद सिंगल पोर्ट, ठीक है, एक आर्टीरियल पोर्ट, वीनस पोर्ट, और ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन पोर्ट जो है यूएफ के लिए, और उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसमें 2 पोर्ट्स कर दी गई। ठीक है, 2 पोर्ट्स के लिए, एक पोर्ट जो थी डायलिसिस फ्लूइड ऐड करने के लिए और इधर से डायलिसिस फ्लूइड आउट। तो दैट वाज कॉल्ड एज हीमोडायाफिल्टर। ठीक है, ये हीमोफिल्टर था, ये आ गया हीमोडायाफिल्टर। और इसकी अवेलेबिलिटी के बाद कंटिन्यूस आर्टीरियोवीनस हीमोडायाफिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, और उसके लिए पहली दफा ये पंप यूज किए गए थे। ये तो उसी तरह फिल्टर था, और ये जो वीनोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन थी उसमें फिर पंप यूज किया गया, क्योंकि साथ ही ये आर्टीरियोवीनस से वीनोवीनस शुरू कर दी गई। तो फिर यही ख्याल आया कि भी आर्टरी से आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस और कॉम्प्लिकेशंस होनी शुरू हो गई थी, व्हाई नॉट टू यूज दी वीनस पोर्ट जो है, वीनस सोर्स यूज करना। मगर ऑब्वियसली वेन में चूंकि प्रेशर ज्यादा नहीं होता तो उसके लिए फिर ये पंप यूज किया गया, और ये पंप डिवाइस हो गए वीनोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन के लिए। ये 1985 में हुआ। तो इसमें ये आपका आर्टीरियल लाइन थी, एप्रन थी, हीमोफिल्टर था, ये डायलिसिस फ्लूइड जो है इसमें रन किया गया, और इधर से अल्ट्राफिल्ट्रेटेड डायलिसिस जो है, डायलिसेट जो है, दोनों इधर से डायलिसेट अंदर गया, इधर से बाहर आया, ये बार नीचे कलेक्ट किया गया, और ये जो पेशेंट को रिटर्न हो गया। ये तो सर्किट था आर्टीरियोवीनस का। इसको मॉडिफाई कर लिया गया
यहाँ पे वो पंप सेगमेंट और पंप यूज करके इसको बजाय आर्टी जो है आर्टियो वीनस करने के वीनो वीनस कर दी गई। ये वो सर्किट से इन 1985 में ये पंप, उसके बाद ये मशीन फर्दर मॉडिफाई होगी, सेकंड थर्ड जनरेशन आ गई इसमें, जिसमें 1 2 3 4 पंप्स यूज होते थे, ठीक है। और फिर ये फोर्थ जनरेशन इक्विपमेंट आ गई। इन्फेंट्स में भी आप कैन सी के पेशेंट इज बट इन्फेंट है, इंटूबेटेड है और इज बीइंग डायलाइज्ड ऑन दीज मशीन्स। विद द एबिलिटी ऑफ दिस मशीन्स बिकेम पॉसिबल कि आप इसको कंट्रोल्ड फैशन से स्मॉल इन्फेंट में भी यूज कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड लाइफलाइन था कि फर्स्ट CAVH वाज इन 1977, फिर ये 83 में CAVHD हुई और उसके बाद ये CVVHD आ गई, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और अब हम इस वक्त 2017 में ये फोर्थ जनरेशन मशीन आ गई। फोर्थ जनरेशन की एडवांटेज क्या है? इसमें यू कैन गिव ऑल दोस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी विद सिंगल मशीन। वो सारी 4 5 6 जो आपको बताई थी वो सारी की सारी सिंगल मशीन के साथ की जा सकती है। CRRT, why to do the CRRT? ठीक है, तो CRRT का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों लोग इसमें इंटरेस्टेड हो गए? कि इसमें एक तो लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड्स कैन बी रिमूव, वेस्ट प्रोडक्ट्स ओवर ए लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है। लॉन्गर टाइम पीरियड से रिमूव करने से क्या हुआ? अभी हम उससे बात कर रहे थे कि हीमोडायलिसिस की एफिशिएंसी में कि अगर आपने अल्ट्राफिल्ट्रेशन करनी है, यू शुड नॉट एक्सीड टू 13 ml पर kg पर आवर, ठीक है। और अगर पेशेंट को इंट्राडायलिटिक हाइपोटेंशन वगैरह डेवलप होती है तो टाइम प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक है। उसी प्रिंसिपल पे ये जो कंटिन्यूअस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का टाइम प्रोलॉन्ग कर दिया गया और दोनों फ्लूइड रिमूवल और सॉल्यूट रिमूवल स्लो कर दी गई, जिससे जो कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद रैपिड रिमूवल ऑफ सॉल्यूट एंड रैपिड रिमूवल ऑफ फ्लूइड, वो उसका इंसिडेंस बहुत कम हो गया, ठीक है। तो CRRT से भी आपने एसिड बेस बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करेक्ट करना है। ये टॉलरेटेड वेल बाय हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट, ठीक है। अभी अब क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस हुआ होगा, अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर स्टेबल नहीं है, पेशेंट इज हाइपोटेंशन, पेशेंट इज इन शॉक, तो आप हीमोडायलिसिस करते हुए रिलक्टेंट होते हो, कभी इस ब्लड प्रेशर पे हमने डायलिसिस नहीं करनी। मगर ये CRRT was well tolerated by even those patients who are hemodynamic unstable patients. तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव करने की जरूरत होती, उसमें भी टाइम को प्रोलॉन्ग कर देने से वो हाइपोटेंशन का रिस्क कम हो जाता है। फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड अगर रिमूव करना है, अभी हमने हीमोडायलिसिस से लिमिटेड अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिमूव 2 लीटर 3 लीटर रिमूव कर लोगे, मगर अगर आपको पेशेंट को एडिक्वेट पारेंटल न्यूट्रिशन देनी है, जिसके लिए आपको 3-4 लीटर देना पड़ेगा 24 आवर्स में, अगर उसके साथ पेशेंट को डिफरेंट एंटीबायोटिक्स भी दे रहे हैं जो कि इन्फ्यूजन से जानी है, तो 5-6 लीटर तो अंदर चला जाएगा, तो वो फिर आप इंटरमिटेंट हीमोडायलिसिस से रिमूव नहीं कर सकते। तो वहां भी CRRT से बेटर चांसेस, ठीक है। फिर इसमें ये भी उसकी जो KUF या KOA उसकी परमिबिलिटी एज कंपेयर टू कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस बहुत ज्यादा है, कि ये आपके मिडल मॉलिक्यूल्स को भी, लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी इजीली रिमूव कर जाता है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल हीमोडायलिसिस।
तो फिर ये सेप्टिक पेशेंट्स में टू रिमूव द साइटोकाइंस इट वाज आल्सो थॉट ऑफ कि ये CRRT विल बी बेटर सेप्टिक पेशेंट में, हीमोडायनामिकली इनस्टेबल पेशेंट में, और ऐसे पेशेंट जिनमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिमूव करने की ज़रूरत हो, फ्लूइड ओवरलोड हो ऑलरेडी, या उनको ऑन गोइंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट की ज़रूरत हो इन द फॉर्म ऑफ पारेंटल न्यूट्रिशन, वास्कुलर सपोर्ट या एंटीबायोटिक यूज़। तो ये इंडिकेशंस आ गई आपकी कि हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी विद एक्यूट किडनी इंजरी जिनको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत है। हीमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट रिक्वायरिंग लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन विद मल्टीपल एंटीबायोटिक्स और पारेंटल न्यूट्रिशन। तीसरी एक किस्म की स्पेशल इंडिकेशन थी acute brain injury with cerebral edema. Acute brain injury, the other causes of intracranial events जो हैं with increased intracranial pressure and renal failure, acute kidney injury जिनको डायलिसिस की जरूरत थी। Severe hyperkalemia, hypokalemia, hyponatremia, hyponatremia जो refractory to conservative management, severe fluid overload, unresponsive to diuretics, और hypercatabolic state जैसे trauma या rhabdomyolysis. These are the usual indications in AKI में, फिर ये CRT was preferred. Let's establish indications: non-renal sepsis, lactic acidosis, acute respiratory distress syndrome, multi-organ dysfunction syndrome, chronic congestive heart failure, decompensated heart disease, pre and post cardiovascular surgery या coronary artery bypass graft surgery, और during extracorporeal membrane oxygenation for fluid management. तो ये relative indications थी। ये एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। 72 years old man with hypertension, history थी उसकी hypertension की, is brought to emergency room with slurred speech, headache, weakness, decreased oral intake, dizziness, fever, and yellow sputum production after falling at home 3 days earlier. CT scan showed intracranial hemorrhage, mass effect, or moderate cerebral edema. In the emergency room, the patient had cardiopulmonary arrest and he was resuscitated. During this resuscitation, he received 6 liters of fluid. Then he is shifted to the ICU on norepinephrine infusion. He was ventilated, put on ventilator with FiO2 needle was 70%. His blood pressure was 90 or 58 on norepinephrine infusion. He was febrile, increased WBC count, decreased blood counts, chest X-ray showed pneumonia and pulmonary edema, renal ultrasound showed normal looking kidneys. His BUN was 67, creatine was 4.3 milligrams per deciliter, electrolyte sodium 132, potassium 6.4, chloride 95, bicarbonate 16, lactic acid 5.2, और serum pH was 7.22. While in ICU, this patient became anuric, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में क्या करना था, नेफ्रोलॉजी कंसल्टेशन वाज आस्क्ड। आप जाके इस पेशेंट को देखते हो, क्या करोगे? क्या करोगे? सर सीवी सर कंटिन्यूस रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी CRRT करेंगे सर। CRT हीमोडायलिसिस आपने हाथ उठा लेने हैं,
कि ब्लड प्रेशर लो है इतना, वो भी नॉरपेनेफ्रिन पे है, तो हमने सीआरटी नहीं करना, ये हीमोडायलिसिस नहीं कर सकते इस पेशेंट में। तो यही क्वेश्चन जो आईसीयू का जब नेफ्रोलॉजिस्ट ने डिसाइड किया कि सीआरआरटी में डालना है, तो जो आईसीयू फिजिशियन था जिसने कंसल्टेशन कॉल की, तो थोड़ी सी डिस्कशन की, क्वेश्चन पूछा कि व्हाई यू वांट टू डू दिस सीआरआरटी। तो इनमें से कौन सी इंडिकेशन बेहतर इंडिकेशन थी जिसके लिए सीआरआरटी सिलेक्ट की गई? नहीं सर। CRRT results in better renal recovery. थर्ड ऑप्शन। नहीं सर। CRRT improves survival in hemodynamically unstable patients. नहीं सर, इसमें कोई स्टडी नहीं। CRT causes less intracranial pressure shift in patients with acute brain injury. CRRT improves patient survival in sepsis mediated AKI. नहीं सर। और CRRT reduces patients' ventilator days through more effective volume removal. सर ऑप्शन सी। Okay? सर सेप्सिस भी ठीक, सेप्सिस के भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स शायद से रिमूव। अभी आपको जो अभी मैंने पहले 1-2 सेकंड पहले इंटरवेंशन दिखाई हैं, एक आपके पास एब्सोल्यूट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन थी और दूसरी रिलेटिव इंडिकेशन थी, ठीक है, या लेस इंपॉर्टेंट जो है इंडिकेशन में, तो सेप्सिस आपके सेकंड ग्रुप में आता है, ठीक है। आधो दिन लोगों ने स्टार्टेड की थी, ये स्टार्ट की थी CVVH फॉर सेप्सिस, तो वो 22 थे, और जो इनिशियल सम स्टडीज ने शो कि सीआरटी से सेप्सिस को कंट्रोल करना इजी हो गया कि आपकी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स वगैरह रिमूव हो जाती है। मगर अल्टीमेटली जो मजीद जब रिसर्च या स्टडीज आई, तो वो आप तौर पर यही दिखाएगा कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था। इसी तरह जो रीनल रिकवरी की बात हो रही है, वो भी सब्सिक्वेंट स्टडीज में ही शो किया गया कि कोई रिकवरी पे, रीनल रिकवरी पे कोई है नहीं ना। ये सर्वाइवल का अगर इतना से, ये भी पेशेंट जो है, ये जो भी पेशेंट जिसकी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी आउटकम क्या होगी, व्हाट डू यू थिंक? इस पेशेंट की सर्वाइवल क्या होगी? सर प्रोग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे ही लगता है कि कोई ज्यादा चांसेस नहीं लगते। ओल्ड एज पेशेंट है, इंजरी है, सेप्सिस है, अंडरलाइंग काज इंट्राक्रेनियल हेमरेज है सर की, हाँ जी, ओल्ड एज भी है। तो अगर आप सीआरआरटी करते हो या हीमोडायलिसिस करते हो, और अल्टीमेटली आउटकम कोई फर्क खास ना पड़े, तो इसलिए ये वाली भी कोई आउटकम बेहतर हो जाती। ये भी सब्सिक्वेंट स्टडीज में ये शो किया गया कि मेजर डिफरेंस नहीं था। दे मे बी सम टेंडेंसी बेटर आउटकम, मगर जो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं थी। मगर टू स्टार्ट विद जो इंडिकेशंस बनती है इसमें, वही है जो सी वाली। हीमोडायलिसिस में क्या होता है? सर प्रेशर बढ़ता है इंट्राक्रेनियल। वो क्यों बढ़ता है? सर वो शिफ्ट की वजह से होता है कि जैसे वो एकदम से रैपिडली सल्यूट रिमूव करोगे, हाँ, ठीक है, तो ब्लड कंपार्टमेंट में से आपका जो है ऑस्मोलैरिटी ड्रॉप कर जाएगी। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी, तो फ्लूइड विल शिफ्ट इनटू द सेल, जिससे ब्रेन एडीमा बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी पेशेंट जिनको ब्रेन एडीमा हुआ हो, तो उनमें इंट्राडाल आप डायलिसिस करते हो अगर, तो रिस्क होगा ब्रेन एडीमा वर्स होने का। तो ये सीआरआरटी स्लो प्रोसीजर है, और अभी हम बात करेंगे आगे जाके कि जो कि सल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती सीआरआरटी में, ठीक है ना। सीआरआरटी में ब्लड में सल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, ऑल्दो यू रिमूव फ्लूइड एंड सल्यूट्स, मगर वो सल्यूट और जो फ्लूइड रिमूव करते हो उसी कंसंट्रेशन में रिमूव करते हो जिसमें वो ऑलरेडी ब्लड में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसके ओवरऑल नेट तो सल्यूट रिमूव हो जाएगा, मगर ब्लड में सल्यूट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होएगी।
तो उसकी वजह से ये जो इफेक्ट हो रहा था डायलिसिस से सलूट रिमूव करने से, वो हीमोफिल ये सीआरआरटी में नहीं होगा। प्रिंसिपल क्या है सीआरआरटी के, इसमें रिमूवल ऑफ सलूट थ्रू कन्वेक्शन, जो ओरिजिनली जो CaVH या CvVH थी, उसमें तो प्रिंसिपल है सिर्फ कन्वेक्शन का, और फ्लूइड रिमूव करना है बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन से। मगर जो CvVHDF आ गई, उसमें कन्वेक्शन भी है, डिफ्यूजन भी है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन भी है, और ये न्यूअर मेम्ब्रेन जो यूज हो रही हैं उनमें एड्सॉर्प्शन भी है। ठीक है, जो मेम्ब्रेन जो है एड्सॉर्ब, जो स्पेशली प्रोटीन बाउंड, ये जो साइटोकाइंस हैं दोस आर आल्सो एब्सॉर्ब बाय ANH6 मेम्ब्रेन। अगर आप यूज करते हो तो उसमें आपकी जो एड्सॉर्प्शन भी हो रही है, डायलिसिस फ्लूइड यूज कर रहे हो, डिफ्यूजन भी हो रही है, और हाई अल्ट्राफिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट वाले आप हीमोफिल्टर यूज कर रहे हो तो कन्वेक्शन भी हो रही है। तो प्रिंसिपल में आपकी चीजें कन्वेक्शन, डिफ्यूजन, एड्सॉर्प्शन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी आप सीआरआरटी कर रहे हो। ठीक है, और इसके साथ फ्लूइड रिप्लेसमेंट, रिप्लेनिशिंग दी डिप्लीटेड सैल्यूट सिलेक्टिवली, कि फ्लूइड रिमूव करना है और सिलेक्टिवली रिप्लेस करना है। तो रिमूवल ऑफ सैल्यूट एंड फ्लूइड बाय कन्वेक्शन एंड डिफ्यूजन एंड एड्सॉर्प्शन, और रिप्लेसमेंट ऑफ डिप्लीटेड सैल्यूट सिलेक्टिवली, और रिमूविंग फ्लूइड बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगी। हीमोडायलिसिस में आप क्या कर रहे थे, मेनली डिफ्यूजन एंड सम कन्वेक्शन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहाँ आपका मेजर रोल है कन्वेक्शन का और अल्ट्राफिल्ट्रेशन का, डिफ्यूजन और एड्सॉर्प्शन आर सेकेंडरी। कंपोनेंट्स क्या हैं, वेल फंक्शनिंग एक्सेस, हाईली परमिएबल मेम्ब्रेन, और पंप्स चाहिए टू सर्कुलेट ब्लड एंड सैल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन with accurate fluid balancing replacement fluids, pressure monitoring systems और anticoagulations। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको जो स्लाइड पहली दूसरी दिखाई थी, ये पहली और दूसरी, ये कंटिन्यूस आर्टियोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन और कंटिन्यूस आर्टियोवीनस हीमोडाइलेशन, ये मैंने डिम इसलिए कर दी है कि ये 77 से 85 तक की यूज की गई थी, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। तो इसलिए ये नीचे वाली जितनी भी 1 2 3 4 चीजें हैं, इनमें आपको पंप्स की भी जरूरत है, चूंकि ये सारी वीनस टेक्निक्स हैं। तो वास्कुलर एक्सेस चाहिए, कैथेटर चाहिए, वीनस कैथेटर यहाँ पे क्लोज, क्योंकि ये सारे पेशेंट, इंडिकेशन क्या है सीआरआरटी की, मोस्ट कॉमनली AKI, एक्यूट किडनी इंजरी। जब एक्यूट किडनी इंजरी की बात कर रहे हैं तो जब पेशेंट ये आपके पास सीआरआरटी जब करनी पड़ेगी, दे वोंट हैव द एक्सेस, ये हेमोडायलिसिस है नहीं जिनकी आपने पहले से वास्कुलर एक्सेस बनवा के रखी हो, तो इनको आपको एक्यूट वास्कुलर एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से आ गए आप, ये पंप आ गया जिसने ब्लड रन करना है, क्योंकि वेन से ब्लड ने निकलना है, हीमोफिल्टर में गया, और उसके बाद ये वीनस सिस्टम से ये वापस पेशेंट को चला गया, तो वीनस कैथेटर दो सोर्स, एक तो आर्टीरियल एक्सेस जिसमें ब्लड बाहर आना है, और वीनस एक्सेस जिसमें से ब्लड ने वापस जाना है। दरमियान में आ गया हीमोफिल्टर, ये एक ब्लड पंप आ गया। ठीक है, और फिर अगर आपने हीमोडायफिल्ट्रेशन करनी है,
फ्लूइड भी रन करना है डायलिसिस का, तो फिर ये डायलिसिस का पंप और एक और पंप जो है आपको अल्ट्राफिल्ट्रेशन का पंप मिलता है। कॉमन 4 पंप तो कॉमन 1 2 3 और चौथा पंप आपको जरूरत पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड देने के लिए। जो मोस्ट ऑफ दीज जो मशीन आजकल यूज हो रही हैं दे हैव दीज 4 पंप्स। अब ये जो ब्लड फ्लो जो जा रही है दैट इज इंडिकेटेड बाय QB, ठीक है। डायलिसेट अगर रन कर रहा है तो डायलिसेट फ्लो रेट इज इंडिकेटेड बाय QD। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का रेट जो है QUF, और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड आप दे रहे हो दैट इज डिनोटेड एज QS, ठीक है। अगर आप वीनोवीनस हीमोफिल्ट्रेशन कर रहे हो जिसमें आपने ये फ्लूइड नहीं देना, डायलिसेट भी रन नहीं करना, सिर्फ अल्ट्राफिल्ट्रेशन करनी है, ठीक है। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट वही होगा जो कि इस पोर्ट में से बाहर आ रहा है। जितना फ्लूइड इस पोर्ट से बाहर आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज इफ्लुएंट, और ये पोर्ट जो है इसमें दैट इज द इफ्लुएंट पोर्ट इसको बोलते हैं। इसकी जो टर्मिनोलॉजी में PRRT के कि ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन पंप के बजाय ये एफ्लुएंट पंप है और एफ्लुएंट पोर्ट। तो अगर आप डायलिसेट फ्लूइड भी रन कर रहे हैं तो एफ्लुएंट पोर्ट में से जो फ्लूइड बाहर आएगा वो डायलिसेट भी होगा और जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन से फ्लूइड आ रहा है वो बाहर। तो एफ्लुएंट का रेट QEF एफ्लुएंट का रेट हो जाएगा QD प्लस QUF। अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट प्लस डायलिसेट फ्लो रेट विल गिव यू द एफ्लुएंट फ्लो रेट। ये जो टोटल फ्लूइड जहां से निकल रहा है उसको जब इस रेट को मेजर करोगे तो दैट विल बी एफ्लुएंट रेट, ठीक है, विच विल बी कंपोनेंट ऑफ डायलिसेट फ्लो रेट और अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट। जी सर। और अगर आप डायफिल्ट्रेशन कर रहे हो जिसमें फ्लूइड भी देना पड़ रहा है आपको, वो यहां दे रहे हो या यहां दे रहे हो, तो फिर एफ्लुएंट पोर्ट में जो यहां से फ्लूइड आ रहा है उसमें आपका QS भी हो जाएगा, प्लस जो सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड है कुछ वो भी उसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होती है वो आपको पता करनी याद रखनी चाहिए कि एफ्लुएंट पोर्ट है, एफ्लुएंट पंप है, ठीक है, ये यूज होता है। अब अगर यहाँ आपने अल्ट्राफिल्ट्रेशन कर दिया है 10-15 लीटर, पेशेंट तो टॉलरेट नहीं कर सकेगा, ठीक है। अगर आपने कन्वेक्शन करनी है सॉल्यूट रिमूव करने के लिए तो कितना फ्लूइड रिमूव करोगे 24 आवर्स में? अगर आपका ऑब्जेक्टिव है सॉल्यूट रिमूवल बाय कन्वेक्शन, और 50% आप रिडक्शन चाहते हो सॉल्यूट कंसंट्रेशन में, तो कितना फ्लूइड रिमूव करोगे? इसमें 50% ऑफ द सॉल्यूट आ जाए 20 लीटर्स ऑलमोस्ट 20-21 लीटर्स। 20 लीटर तो बेटे उस सूरत में होगा अगर वो फ्लूइड आप ब्लड वापस नहीं जा रहा, ठीक है ना। जिस तरीके से एग्जैक्टली आपका जो है KT और V, KT इज 1.4 वॉल्यूम्स के जितना प्लाज्मा वॉल्यूम है उसका 1.4 टाइम्स आपको क्लियर करना पड़ता है। जी सर। तो यहाँ भी 20 लीटर से ज्यादा आप रिमूव करोगे तो फिर ही वो 50% रिडक्शन होगी। ठीक सर। अगर आप 40% 40 में से 20 रिमूव करते हो पेशेंट तो शॉर्ट में चला जाएगा। तो उसके लिए आपको
ये सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड देना पड़ेगा, बिल्कुल। ठीक है। और वो फ्लूइड हम कहाँ देते हैं? यहाँ पे So, पंप से पहले, विच इज कॉल्ड एज प्री डाइल्यूशन, ठीक है। ये प्री डाइल्यूशन है, मीन प्री हीमोफिल्टर डाइल्यूट कर रहे हो आप, या आप पोस्ट डाइल्यूशन देते हो, या आप मिक्स डाइल्यूशन होती है जिसमें आधा इधर से दे रहे हो आधा इधर से हो। और चौथी वैरायटी जो है दैट इज दी मिड डाइल्यूशन, यहां आप मिड डाइल्यूशन, यहां पे आप फ्लूइड रन करते हो ताकि दोनों की एडवांटेजेस जो है आपको मिल जाए, प्री की भी और पोस्ट की भी। या तो मिक्स यूज करोगे या फिर मिड यूज करोगे। शुरू में जब ये शुरू किया गया था तो ये प्री डाइल्यूशन इस्तेमाल होता था, फिर कुछ लोगों ने पोस्ट डाइल्यूशन इस्तेमाल की और दोनों के साथ प्रॉब्लम्स आए, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो उसको कम करने के लिए दोनों को मिक्स कर दिया गया, और या फिर ये मिड डाइल्यूशन के लिए यू हैव टू हैव हीमोफिल्टर, स्पेशल काइंड ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो हीमोफिल्टर, इस हीमोफिल्टर के साथ अब मिड डाइल्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर में जो फ्लूइड देने के लिए पोर्ट नहीं है यहाँ। अब यहाँ पे आपका जो हीमोफिल्टर है, ये डायाफिल्टर 30 है, कासा बड़ा होता था। आई वर्क विद डायाफिल्टर 8 जो है, जिसका साइज तकरीबन इससे हाफ से भी कम होता था, इतना को होता था उसका ना। ऑलराइट, अब क्या होगा, शुरू में जो फाइबर्स के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड विल मूव आउट, और फाइबर के अंदर बाय द टाइम द ब्लड रीचेस समवेयर हियर, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड इनटू द डायलिसिस कंपार्टमेंट, और ऑनकार्टिक प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? आपकी जो पेरिफेरल कैपिलरीज में क्या होता है, स्टार्लिंग फोर्सेस से आर्टीरियल लेंथ पे फ्लूइड बाहर निकलता है ड्यू टू इंक्रीज इन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और वीनस एंड ऑफ द कैपिलरीज पे आपका ऑनकार्टिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो आपके फिल्ट्रे जो मूव किया हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेस वो वापस वेन में चला जाता है। तो ये पॉइंट जो है जहां पे ये क्रॉस करेंगे दोनों, दैट इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन पॉइंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का और ऑनकार्टिक प्रेशर। कितना फ्लूइड जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाना है, दैट विल डिपेंड ऑन कि ये वाला पॉइंट किस लेवल पे है। अगर ये पॉइंट यहां पे आ जाता है तो फ्लूइड वापस रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। अगर ये यहां पे आ जाता है तो ऑनकार्टिक प्रेशर यहीं पे ज्यादा हो जाता है, तो ये फिल्टर किया हुआ फ्लूइड जो है वापस आना शुरू हो जाएगा। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट कि ये फिल्ट्रेशन पॉइंट इक्विलिब्रियम किस लेवल पे है, और इसको रेगुलेट करने के लिए फिर लोगों ने इसको मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे कर सकते थे इसको, कि इसकी लेंथ कम कर दें, कि बजाय ये लंबा करने के इसको हम इतना ही साइज की लंबाई उसका साइज का। दूसरी मॉडिफिकेशन क्या की गई कि उनका इंटरनल डायमीटर जो है वो बड़ा कर दें। और तीसरी मॉडिफिकेशन क्या की जाती है कि फिल्ट्रेशन इतना फ्लूइड करे ना फिल्टर कि ऑनकार्टिक प्रेशर जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से बढ़ जाए। याद रहेंगी तीन चीजें, कि लेंथ कम कर दें, इंटरनल डायमीटर बढ़ा दें, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली फिल्ट्रेशन जो है फ्रैक्शन वो कम कर दें, मैनिपुलेट करें। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम जो पॉइंट था यहाँ पे, अब इसको इम्प्रूव करने के लिए जो अब्जॉर्प्शन थी, बैक लीक थी, जो कि फिल्टर की ज्योमेट्री चेंज कर दी जाए, लेंथ ऑफ द फाइबर चेंज कर दी जाए,
अगर हम फिल्ट्रेशन की लेंथ इतनी है तो क्या होगा? बैक लीक होगी? नहीं सर, हेलो, यस सर। होगी? बैकलिक तो नहीं सर ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ेगा नहीं ना? अनकोटिंग प्रेशर तो नहीं यहाँ- होगी, ऑप्शन नहीं होगी। सिर्फ प्रेशर आपकी अल्ट्रा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी। यहाँ भी सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी, मगर यहाँ पे जाके जहाँ के अनकॉटिक प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर से बढ़ गया है तो इस लेवल पे आपकी बैक लीक होगी। ठीक है, तो इसलिए लेंथ चेंज कर दी गई, इसको यहीं पे रखें। दूसरा इन्हें डायमीटर बढ़ा दिया गया कि ज्यादा फ्लूइड होगा तो उसमें से फ्लूइड रिमूव भी हो जाएगा, तो फिर भी अनकॉटिक प्रेशर जो है वो नहीं बढ़ेगी। और ब्लड फ्लो और अल्ट्राफिल्ट्रेशन फ्लो को फ्रैक्शन जो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को कम कर दे। अगर मैं 100 ml ब्लड फ्लो जा रहा है, ठीक है, और 50 ml में उसमें से अल्ट्रा फिल्टर कर दूं तो क्या होगा? क्या होगा? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। 100 ml पर मिनट ब्लड फ्लो थी और आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेट रेट जो था वो अब 50 ml पर मिनट। क्या होगा? सर सेंटर में आ जाएगा कहीं पे 50%? ये लेफ्ट को मूव कर जाएगा। ठीक है, 50% जो है ऑप्शन ज़्यादा हो 50% आपने रिमूव कर दिया तो ये अनकॉटिक प्रेशर बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो अब आपके लिए उसको कम करने के लिए, इसको वापस इधर शिफ्ट करने के लिए क्या करोगे? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या कर सकते हो? अगर आपने फिल्ट्रेशन जो है वही रखनी है कि मैंने 50 ml पर मिनट ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करनी है, तो इस पॉइंट को राइट पे शिफ्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? या तो रिप्लेसमेंट मिड डायलूशन। नहीं, ब्लड फ्लो को बढ़ा दें। बढ़ेगा नहीं फिल्ट्रेशन ठीक है, अगर मैं 100 ml पर मिनट ब्लड फ्लो रखता हूं और उसमें से 50 ml पर मिनट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता हूं तो 50% होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। अगर मैं ब्लड फ्लो 200 कर देता हूं और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट वही रखता हूं 50 पर मिनट, तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या हो गई? कम हो जाएगी 50 over 200, कम हो जाएगी 25% होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करने के लिए या तो आप ब्लड फ्लो बढ़ाओगे या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट को कम कर दो। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है इज इक्वल टू ब्लड फ्लो ओवर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है। ऑप्टिमल रेंज जो है वो 15 to 20% है। अगर आप 15 to 20% से ज्यादा रखते हो तो क्या होगा? ये होगा कि इधर से ब्लड आ रहा था, यहां आके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई, तो बाकी जो ब्लड बचा उसकी क्वांटिटी कम हो गई, नंबर 1। दूसरा, और क्या होगा? हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी, विस्कोसिटी ब्लड की बढ़ गई, प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। 50% अगर फ्लूइड रिमूव कर दिया था तो प्रोटीन की कंसंट्रेशन डबल हो गई, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन डबल होगी, जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो है फाइबर के अंदर डिपॉजिट होनी शुरू हो जाएगी और इसकी थ्रोम्बोसिस का चांस जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो बहुत कम हो गई हुई है ज्यादा फ्लूइड रिमूव कर देने की वजह से। ठीक है, तो हाई फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो है जिसमें प्रोटीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो पोलराइजेशन फिनोमेना इसे कहते हैं कि मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पे इफेक्ट होगा, इसकी थ्रोम्बोसिस हो सकती है, प्रोटीन की लेयरिंग हो जाने की वजह से परमेबिलिटी कम हो जाएगी और विस्कोसिटी बढ़ जाने की वजह से और फ्लोट कम हो जाने की वजह से थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। काफी है।
तो थोड़ा रखते हैं पीरियड दरसान में। तो क्या चीजें आज पढ़ी हैं आपने? पहले different types of CRRT. What is CRRT? What is different types of CRRT? सीआरआरटी की टाइप, History, सीआरआरटी की इंडिकेशन, सीआरआरटी की components, कंपोनेंट्स CRRT. और सीआरआरटी की प्रिंसिपल्स और सीआरआरटी की फंक्शन जो है कि किस तरीके से आप ये सीआरआरटी वर्क करती है, जिसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मेजर रोल है या सिग्निफिकेंट रोल है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। और उसमें कॉम्प्लिकेशन की थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ज़्यादा फ्लूइड मूव होंगे, इनको भी वो बाद में करेंगे। तो ये जो टर्म जो है यहाँ आपने याद रखनी है कि ये सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड जो QS है, QUF है अल्ट्राफिल्ट्रेशन रेट, QEF है एफ्लुएंट रेट, QD डाइल्यूटेड फ्लो रेट, ठीक है। और ये जो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और ये एफ्लुएंट, ये टर्मिनोलॉजी यूज होनी है आगे। और ये जो फिल्ट्रेशन Filtration point. पॉइंट जो है, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है, ये फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्विलिब्रियम, वो पॉइंट का आपको पता होना चाहिए। और उसको मैनिपुलेट करने के लिए अभी हमने बात की है कि ब्लड फ्लो बढ़ा दें। जी सर. अब ब्लड फ्लो अगर नहीं बढ़ सकती तो फिर क्या होगा? Replacement fluid. तो फिर ये मसला आपका हल नहीं होगा ना, फिर ब्लड फ्लो नहीं। उसके लिए फिर ये Replacement fluid. ये वाला डिसोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन फ्लूइड आप फिल्टर से पहले देते हो तो यहाँ जो ब्लड जा रहा है उसमें क्या होगा, उसको क्या होगा, Dilute हो जाएगा. डाइल्यूट हो जाएगा। और उस डाइल्यूटेड ब्लड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम हो कम हो जाएगी। अगर मैं 10 लीटर रिमूव करता हूँ वो फ्लूइड जिसमें प्री डाइल्यूशन ये डाइल्यूशन थी, फ्लूइड दिया गया था, और अगर मैं 10 लीटर ही रिमूव करता हूँ और अगर पोस्ट डाइल्यूशन जो है सब्स्टिट्यूट फ्लूइड दे रहा हूँ, दोनों में क्या फर्क होगा? 10 लीटर ही रिमूव किया है। सर पोस्ट डाइल्यूशन वाले में क्लियरेंस अच्छी होगी टोटल, ज्यादा सॉल्यूट हमने रिमूव करेंगे एज कंपेयर टू प्री डाइल्यूशन जो है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। तो ये बैलेंस करना है आपने। इसकी एडवांटेज ये है कि ये जो है पोलराइजेशन फिनोमेना, जो थ्रोम्बोसिस या उसकी क्लॉटिंग का या परमेबिलिटी कम हो जाएगा, वो रिस्क कम हो जाएगा। इसमें वो रिस्क ज्यादा होगा, इसमें क्लियरेंस कम हो जाएगी, इसमें क्लियरेंस ज्यादा होगी। अब एक और फिनोमेना आ जाता है, व्हाट अबाउट यूरिया? यूरिया की रिमूवल को क्या होगा? इसमें यूरिया की यूरिया की रिमूवल को क्या होगा? अगर मैंने 10 लीटर इधर से रिमूव किया है इस वाली अल्ट्राफिल्ट्रेशन ये डाइल्यूशन से, और 10 लीटर मैंने इस डाइल्यूशन से रिमूव किया है, तो यूरिया की रिमूवल पे क्या इम्पैक्ट होगा? फास्फेट की रिमूवल पे क्या इम्पैक्ट होगा? एक मिनट सोच ले और सेम फिर मैं हाँ शाबाश, सेम रहेगा, सेम रहेगा। अभी तो आप कह रहे थे कि ज्यादा सॉल्यूट रिमूव होता है। सर नहीं, मैंने तो हाँ हो सर हाँ हाँ सर वो सर यूरिया की परमेबिलिटी, इस तरह परमेबिलिटी के हिसाब से तो शाबाश। उसकी रिमूवल नहीं होती। वो तो कन्वेक्शन के थ्रू होती है. यूरिया का जो है इसकी परमेबिलिटी के हिसाब से रिमूवल उस तरह नहीं होगा ना कि क्लियरेंस उसके लिए आपको चाहिए, या ये तो वो डिफ्यूज साथ ही हो जाएगा उसके अंदर।
ये ब्लड जा रहा है, हैं ये आरबीसीज है। उसका मुझे पता तो यूरिया जो है नहीं। सुबह और फास्फेट का तो लेवल का आपको पता ही है कि इंट्रासेलुलरली ज्यादा है, ठीक है। ये पी फास्फोरस है, यू यूरिया है। और यूरिया भी जो है इंटरसेलुलर यूरिया इज इन फुल इक्विलिब्रेशन विद द एक्स्ट्रा सेलुलर। प्लाज्मा यूरिया, ठीक है। जब आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करोगे पोस्ट डाइल्यूशन में, तो आप ये यूरिया तो रिमूव कर लोगे, ये वाला यूरिया रिमूव नहीं होगा। ऐसे ही है, क्योंकि ये सेल के अंदर है, इट विल टेक सम टाइम बिफोर इट कम्स आउट। अब प्री डाइल्यूशन में आपने क्या किया है? प्री डाइल्यूशन में जब फ्लूइड आपने यहां पे दे दिया है तो हीमोडाइल्यूशन कर दी, जी सर। तो इस ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ये आपका ग्रेडियंट हो जाएगा यूरिया की आउट मूवमेंट के लिए, मोर रैपिडली ये बाहर आ जाएगा। तो आप इंट्रासेलुलर यूरिया भी रिमूव ज्यादा कर लोगे और यू विल हैव लेस। इस सूरत में क्या होगा? पोस्ट डाइल्यूशन में आपके पास रिबाउंड ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन खत्म कर दी तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड से वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही बाहर आ गया हुआ है, तो ट्रीटमेंट स्टॉप करने के बाद भी वो इतना ज्यादा इंट्रासेलुलर से बाहर नहीं आएगा। ये थ्योरेटिकली है, ठीक है। आप पहले बता चुका हूं कि रिबाउंड कम करने के लिए अगर आप डायलिसिस को प्रोलॉन्ग कर देते हो, तो जैसे जैसे यूरिया आप रिमूव करते जाते हो साथ साथ ही इक्विलिब्रियम होता जाता है, और ये तो प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है फॉर 24 आवर्स। तो इसलिए ये जो भी हमने बात की है, दिस इज मोर ऑफ थ्योरेटिकल, ठीक है। जो आर्गू करते हैं प्री डाइल्यूशन के लिए, वो यही आर्गूमेंट देते हैं कि हमें प्री डाइल्यूशन करने से ये एडवांटेज होगी कि आप इंट्रासेलुलरली यूरिया और फास्फेट भी ज्यादा रिमूव करोगे इस फिनोमिना की वजह से। मगर एज इट इज प्रोलॉन्ग, और ये रीइक्विलिब्रियम के लिए कितना टाइम चाहिए? इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट से बाहर आने के लिए कितना टाइम चाहिए? 1 आवर चाहिए सर। 30 मिनट। आपको क्या बताया था? EKTV, क्यूमुलेटिव KTV का आपको 38 मिनट्स के बाद ब्लड सैंपल लेना होता है। यहां आपने क्या होगा? ये पोस्ट डाइल्यूशन है, लेफ्ट वाली पोस्ट डाइल्यूशन वाली है, जहां आपने सॉल्यूट को रिमूव कर दिया है, उसी कंसंट्रेशन में फ्लूइड भी रिमूव कर दिया, तो कंसंट्रेशन तो चेंज नहीं हुई, ना ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई है इस फ्लूइड की यहां पे, तो इसलिए ये यूरिया बाहर नहीं आएगा, इस वक्त बाहर नहीं आएगा। कब वापस आएगा? यहां से जाके जब पोस्ट डाइल्यूशन फ्लूइड ऐड हो गया, फिर वो वापस इधर आएगा, तो उस वक्त फिर चांस होगा ये रिमूव हो जाएगा। मगर सिंगल पास में, फर्स्ट पास में, इस स्टेज पे ये आपकी पोस्ट फिल्टर्ड डाइल्यूशन है, तो यहां पे जितना भी अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा उसमें यूरिया और फास्फेट की कंसंट्रेशन उतनी ही होगी अल्ट्रा फिल्ट्रेट में भी जितनी ब्लड में है। तो ब्लड में यूरिया की कंसंट्रेशन या फास्फेट कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, इसलिए देयर विल बी नो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर दीज मॉलिक्यूल्स टू कम आउट ऑफ द सेल। मगर ये प्री डाइल्यूशन में आपने इसको डाइल्यूट करके यहाँ पे पहुंच रहा है ब्लड, तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर यूरिया और फास्फेट भी यहाँ से बाहर आ जाएगा। और रिलेटिवली जो हीमोडाइल्यूशन होनी है, जब हमने बात की ना कि हीमोडाइल्यूशन हो जाएगी, तो वो यूरिया और फास्फेट की कंसंट्रेशन पे ज्यादा फर्क उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंट्रासेलुलर यूरिया और इंट्रासेलुलर फास्फेट ज्यादा बाहर मोबिलाइज हो गए हैं, जो कि पोस्ट डाइल्यूशन में नहीं होते। मगर वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन पे
डिफरेंट, डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। जो मिनरल मालिक्यूल्स हैं, लार्ज मालिक्यूल हैं, जो कि ब्लड के अंदर ही हैं, सेल के अंदर नहीं गए, उनकी रिमूवल पे सर्टेनली फ़र्क पड़ेगा, मगर प्री या पोस्ट सॉल्यूशन में यूरिया या फॉस्फेट की रिमूवल में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा ड्यू टू दिस फिनोमेना। याद रहेगा? तो थोड़ी सी डिसोसिएशन हो जाती है इन रिमूवल ऑफ यूरिया फॉस्फेट और बाकी मॉलिक्यूल्स की इन प्री डाइल्यूशन मोड और पोस्ट डाइल्यूशन मोड। क्लियर? जी सर। क्वेश्चन कोई? जी नहीं सर। नहीं करनी? चले आप इसको मुख्तर ही रखते हैं, तो 45 मिनट से 1 घंटे नहीं ज़्यादा लेना मैंने, ताकि मगर वक्त पे शुरू करें ताकि वक्त पे फारग हो। हाँ जी सर। जी सर। सर वो एग्जैक्ट सर अब आगे से 11 इसी को o'clock। कंटिन्यू करें। 11 o'clock होगा। 11 o'clock 11 देख लें, अगर टाइम चेंज करना तो मुझे बता दें। 11:30 कर लें अगर मुश्किल है। ठीक सर, 11 बजे सर ठीक है। जैसे आपको ठीक लगता है। नहीं, मुझे कोई नहीं है, मैं फारग हूँ। मैं 11 बजे भी आ सकता हूँ, 12 बजे भी आ सकता 11 बजे ठीक है सर, या 11:30 कर लें सर। हूँ। चले इन भी 11:30 कर। जी सर, 11:30 से। ठीक है सर, इंशाल्लाह। चले अब अगली जो है, हम जो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जी सर। ठीक है, और आपने बाकी टॉपिक नहीं मुझे बताए। सर वो जो इंटरेस्टेड थे वो तो हीमोडायलिसिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, न्यूट्रिशन और जीएन सर। जी सर। सर आवाज़ आ रही? सर लोग सर आवाज़ आ रही? अच्छा चले मैं बता दूँ। ऑफलाइन हो जी फ़ोन पे पूछ रिकॉर्डिंग हो गया।